Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ISI ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? 1.4% है and PM makes a statement. ये तो साहब जी खास पंजाबी में आ गया। बिल्कुल सर, शर्मा जी की हाल है? देखो और तो कैनेडा तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗੜਬੜ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। जी सर, रॉय जी। रॉय, Shubhranshu, Tarak ji, Sanjay ji, namaskar. Data shows that atheism is increasing around the world. Is this true? If yes, then is it new Marxism under development? Atheism and Marxism would be completely separate developments in a way that Marxism primarily is a dictation of how one considers the development of the human being from ancient civilization right up to now, what determines how economics and the exploitation of the ordinary working man is involved in the progress of humanity. Atheism is now a drug which is freely available over the counter for upper class aunties and uncles who put their eyeglasses like this and sit down with expensive adornments on the side and say, I really don't think there is a God. Problem ye hai ki whether there is a God or there isn't a God, somebody's got to stop people who get a good feeling out of killing other people, whether it is in Ethiopia, thousands have died, or Somalia, or what they are doing in the Naxal movements, or jo kuch bhi ho raha. The point is these are unrelated. ABCD पढ़ने से पहले कुछ भी नहीं होता है, तो ये पहले जो ABCD को रोकने के लिए आपने कर दिया कि एथिज्म, जैसे I'll give you an example of a lot of Muslims who call themselves ex-Muslims of North America. तुम्हारे ex या pro ये उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बोहेमियन बनने की जरूरत तुम्हें क्या है? अरे बिस्मिल्लाह तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग से पहले कहते चलो बिस्मिल्लाह करो, शुरू कर। तो कोई हो अल्लाह के पीछे थोड़ी पड़ रही कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ऑब्सेशन विथ एथिज्म as if one is liberated is just a drug as much as religion is. इनको हटाओ, these are your personal moral compasses, चाहे आपके धर्म से आपको मिलता हो, चाहे आपकी एथिक्स में आता हो। एथिक्स एंड मोरालिटी जो है उसका रिलीजन से ताल्लुक, रिलीजन से उसको गाइडिंग पोस्ट कर सकता है, कंपस दे सकता है, और कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर आप में सच्चाई नहीं है, फॉरगेट वेदर यू आर एथिज्म और नॉट। एथियस्ट बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि एथियस्ट जो है ये अपर क्लास बीमारी है और वो लिखने पढ़ने के अंदर काफी मशहूर है। जाएं आप किसानों में, कहीं इधर उधर वर्कर्स में देखिए कि भाई तू एथियस्ट है कि मार्क्सिस्ट है, इतनी जबरदस्त चपत लगाएगा आपको कि पागल हो गया या खाने पीने को नहीं है तू बात कर रहा एथिज्म की। सो वी नीड टू लैंड इन अ मोर प्रैक्टिकल वे कि असल प्रॉब्लम्स क्या है। Yeah, in any case, this atheism, I don't find it intellectually very on a sound basis. Ultimately, it is becoming belief versus belief. Atheism is a negative belief. That's all. But let it go, भैया, उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। हाँ, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं सर। हाँ, थोड़े से आंसर छोटे छोटे देंगे नहीं सर, रात के 3 बजेंगे, मैं आपको वार्न कर दूं।
Is it that cool to relate Nehru Gandhi, and that is first and surname, to the greats like Tilak, Savarkar, Bose, Chatterjee, Aurobindo, Vivekanand, etc.? It is their names come up because they combine with the great event of August 15, 1947. उसकी क्रॉस हेयर्स के अंदर इनके नाम आते हैं. अब भगत सिंह हैं या नेताजी हैं, ये सब लोग जो हैं, ये क्योंकि उस इंटरसेक्शन में नहीं थे, their names did not carry. जहां तक सावरकर की बात है, I read him before I knew that reading him was a big problem. मेरे फादर ने मुझे 1857 हिस्ट्री ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दी थी. तो ही इज अ ग्रेट मैन ऑन हिज ओन अकाउंट. ये चुन चुन के टारगेटिंग हिटिंग करना इधर उधर से कोई फायदा नहीं है. सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आजाद किया और एक शख्स ने उस आजादी को खट्टा कर दिया, वो था मोहम्मद अली जिन्ना. हम आपस में लड़ने का हमें कोई फायदा नहीं. हमारा जो रियल एनिमी है हमें पता कौन है, और जिसने उसको एड दिया, जो आज भी उसे मानते हैं, जो तस्वीर लगाते हैं, वो है हिंदुस्तान के दुश्मन. जी. अरुण चिप, तारिक सर, do Muslims of Jammu carry the same mindset as Muslims of Kashmir? I won't know. This is not my area of expertise. I've met some Jammu Hindus and Jammu Muslims, and they generally are less conflicted. Maybe I'm right or wrong, but ये मेरा 2-3 लोगों से उठने बैठने में हुआ है कि there seems to be, क्योंकि मे बी जम्मू में वो एक्सट्रीम मेजॉरिटी नहीं थी जिसमें एक फीलिंग है कि ये तो हमारा था और हमसे छिन गया. ये I didn't find that over there, but perhaps I'm wrong. Subramaniam, Tariq sir, isn't Allah versus Mullah Islam similar to current days religion of peace strategy? That is, don't you think Muslims' intentions are misplaced? देखिए, the target of the Islamists is primarily Muslims. अगर सीरिया में 5 लाख मुसलमान मरे हैं तो 5 लाख को मुसलमानों ने मारा ना. अगर कर्ड्स मर रहे हैं, बांग्लादेशी मर रहे थे, बलोच मर रहे हैं, आपका वेस्टर्न सहारा में पोलिसारियो फ्रंट है, वेस्ट पापुआ है इंडोनेशिया में, दारफूर है सूडान में, यहाँ मुसलमान को मार रहा है ना. तो ये क्लियर समझिए कि दिस इज सेल्फ एनाहिलेशन एंड अ क्वेस्ट to go to the final frontier, which is from this transit lounge, which is earth, and फिर वो free dating center जो पैराडाइज में होगा, जहाँ जितनी गर्लफ्रेंड्स आपने को टच नहीं करने को मिलेंगी, सब खड़ी हुई होंगी आपके लिए. They produced a destination point which is so vulgar that I would not want to go there. शहद की नदी में किसी और को छलांग मारने की शौक होगा, मुझे नहीं है साहब. तो दिस इज वेरी ट्रेजिक अबाउट हाउ द इस्लामिक फेथ हैज इनवाइटेड पीपल टूवर्ड्स इटसेल्फ कि या बर्दाश्त कर लो, आगे चल के बहुत मजे आएंगे. मे बी माई forefathers fell for this, or maybe they were caught in a famine somewhere in Rajasthan, तो वो मुसलमान हो गए. But this temptation is not based on some sound intellectual challenge. Okay, next one. Whether Mac 6 and so-called, Mac 6 is the followers of the 12th Guru. There is a 12th Guru, Arthur MacAuliffe, who formed this new creed of Sikhs, which you find in Khalistanis. So whether this Mac 6 is a term coined by my friend Sankrant Sanu and made popular by me. अच्छा, okay, चलेगा. Mac 6. So whether Mac 6 and so-called liberal Muslims are future investments of USA and Canada with a view to raise reserve force and use the same in future to subvert the democratic governments of the world they may ever dislike. I don't think the West is in that phase where it can manipulate populations and all that. The mediocrity of that is taking ascendancy in the West is reflected in the current elections of how Trump was defeated
based on COVID-19, which actually was created by China. This ये कभी मूवी भी बनेगी इसके ऊपर. But I think there are enough pickings for the leading corporate houses. देखिए इस पूरे एक साल के अंदर hundreds of billions of dollars बनाए हैं कुछ billionaires ने, और hundreds of thousands लोग बेकार हो गए विदाउट अ जॉब. ये हमारे एक साल के अंदर मिला. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमारे जो मैक्सिक्स हैं या लिबरल मुस्लिम्स हैं, इनको अपनी पहचान नहीं है कि वो हैं कौन और वो किसकी धरती को किस तरह सर्व कर सकते हैं. हो सकता है उनमें ये जुम्बिश हो कि आई वुड लाइक टू हेल्प द वर्ल्ड, बट इफ यू आर नॉट हेल्पिंग हिंदुस्तान और भारत, और यू डू नॉट हैव दैट इन योर माइंड कि दिस इज द ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि हमने बहुत कुछ दे दिया है हमें. डेमोक्रेसी इंडिया इज ऑलवेज फ्रेजाइल, ये मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि इसमें आप सोचिए 29 स्टेट्स, 400 ज़बानें, ये आपको तारीख में नहीं मिलता. एंड वी अकम्प्लिश्ड दैट वेदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी और हुएवर. तो इन पर ज्यादा तवज्जो ना दें. ये ऐसे फार्मर्स राइट होगा और CAC होगा और सब कुछ होगा. इंडिया विल सर्वाइव एंड राइज टू इट्स ग्लोरियस डेस्टिनेशन, याद रखिए. Okay, I think we lost contact with you, or no. Okay. I just stop my camera for a minute. Okay. तो थोड़ा सा मुझे क्या श्रृंगार करना था जी. अच्छा, not to worry. No. गिरीश बिलोर, किसान टावर तोड़ रहे, यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठी. पतंजलि, रिलायंस, अडानी का जम के विरोध है. यूरोप प्लस लेफ्ट का योगदान तो नहीं है. बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी हो जाती है ये वैसे. बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ इफेक्टिव पाकिस्तान इज इन पुशिंग द एजेंडा. मैं इल्तिजा करता हूं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया मस्ट हैव एन एजेंडा ऑफ स्पीकिंग फॉर इंडिया इन पब्लिक डोमेन्स, जिस तरह पाकिस्तान करता है. एंड ये सारी बातें साफ हो जाती हैं कि क्या हो रहा है, असल स्टोरी क्या है. आपके कई इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल जो हैं इंडिया के, वो इंडिया के खिलाफ लिखते ही रहते हैं. आप जब चाहिए आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में मिल जाएगी बेवकूफ़ी की बात, यू नो. सो दैट इज माय कमेंट ऑन दैट. ये कोई राजन मानता साहब है. राजन मानता, तारिक से संजय सर, do you think making Muslims understand the true history is possible? And they are willing to listen? Absolutely they are. Absolutely. आप सारे मदरसों को बंद कर दीजिए for heaven's sake and turn them into schools and then teach them the history that wasn't taught by in the syllabuses of your first education minister and subsequently 2-3 other people. आपको इतना झूठ बुलवाया गया है कि यू हैव नो आइडिया कि एक्चुअल इंडिया जो है वो तो पाकिस्तान है. आप गंगा जमुना की तरफ डाल के सिंधु को तो हटा दिया आपने. ये हिंदू नाम ही बाहर से आया हुआ. ये सिंध की मिसप्रोनाउंसिएशन में हिंदू लोग बने ना. तो हम सब हिंदू हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हो या सनातन धर्म के हो, कुछ भी हो. वी बिलोंग टू दिस लैंड, देयरफॉर वी आर ऑल हिंदूज. And Muslims can understand this if it is told, but that is not in contradiction with your belief that there is one creator and Muhammad is his messenger. And the main message he ever sent was कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है. कभी आप नहीं ये पढ़ेंगे. उन्हें कहा इसको तो हटाओ जरा पहले. ये प्रॉफिट ने क्या कह दिया, ये तो गड़बड़ हो गई साहब. ये तो ये साहब ये कहाँ से आ गया. हम तो फतावा आलमगीरी और फतावा रज़विया पढ़ेंगे साहब. देखिए ये हमारे यहाँ की खुद की, यहाँ की खुद मुख्तार किताबें हैं. तो देखिए बात सारी कौन बताएगा? वो मुसलमान ही बताएगा ना. किसी मुसलमान को भैया तू किस चक्कर में अपने नाम तो हिंदुस्तानी रखो. ये कैसे हो सकता है कि तुर्की में हर मुसलमान का नाम टर्किश हो,
ईरान में हर मुसलमान का नाम पर्शियन हो और हिंदुस्तान के हर मुसलमान का नाम अरबी हो। एक हमारे जज साहब है पंकज रिजवी, पता मजा आया ना, पंकज तो है नाम। एक देखिए नाम ना बता सकता हूँ आपको। अच्छा नहीं, तो मैं तो अपना भी क्लेम करता हूँ, तर्क जो है वो इट इज वन ऑफ द फ्यू वर्ड्स। ये तो आपने बाद में सोचा है। ना बाद में सोचा, रेट्रो इफेक्ट कर रहे हैं ना, हम भी गेम खेल रहे हैं ना। हमें कहा आपने क्यों नहीं नाम बदला, मैं बदल देता। मैं तो बेटी का नाम रखने वाला था लक्ष्मी, लेकिन एक हंगामा, सिविल वॉर हो गई घर के अंदर। लेकिन तर्क जो है ये इट्स अ रूट वर्ड टू सितारा, तारा, तारिक, ये सारे ये संस्कृति वर्ड हैं। अब बेवकूफों को नहीं पता है तो मैं क्या करूं। दिस इज a word that goes to star। हर जगह इसका रूट वर्ड संस्कृत है। कई संस्कृत के वर्ड हैं जो इंग्लिश में हैं, जर्मन में हैं। ये खुद हम अपने आप को अंडरसेल मत करें। हमने चेस ईजाद की है सर, बाकी जाने दें। उसका उदाहरण आज तक नहीं हमें मिल रहा। डेस्क वाले मेरे को डांट लगा रहे हैं, आप गपशप न करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो मुझे डांट रहे एक्चुअली। नहीं मुझको डांट रहे हैं, मैं बीच में आपको छेड़ रहा था ना थोड़ा सा। Okay, why should Hindus compromise for everything? Everything, despite claiming 1,000 years of slavery of Hindus, they demand for reservations and special rights. ये ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब की तो क्या। हाँ, तो ओवैसी साहब can go to Pakistan. He wanted, his party was for pro Pakistan. इनके नखरे सारे हैं पाकिस्तानी, चले जाए ना वहां, क्यों नहीं जाते? क्यों हर जगह जाके अपना इलेक्शन लड़ने? देखिए, हिंदुओं को किसी ने नहीं रोका कि वो अपना असर्ट करें, बट यू डू नॉट हैव टू गो मैड टू असर्ट इट। आपको असर्ट ये करना है कि दिस इज आवर सिविलाइजेशन। करकोटा को हम इंक्लूड करेंगे, ये नहीं कि क्योंकि वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर को तकलीफ हो रही थी तो उन्होंने हटाई दिया 8th सेंचुरी। किसी को पता ही नहीं इंडिया में के आपके महाराजा दाहिर कौन थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक स्टैचू है, मैंने आपको बताया था। हाँ बताया आपने सर, लेकिन वो मजा नहीं आया, उसमें बहुत छोटा था। हम तो कह रहे हैं कि सर सबसे बड़ा स्टैचू होना चाहिए उस शख्स के लिए जिसने हिंदुस्तान पे हमले को सबसे पहली दफा सैक्रिफाइस दिए, बेटियां उसकी लेके गई, जान दी उसने अपनी। और क्या चाहिए? और किसने मारा ये भी बताएं कि उस शख्स की फौज ने मारा जिसने काबा को तोड़ा। 18 साल तक हज नहीं हो सका वहां पे। दे बम्बार्डेड द मक्का। द मैन वी रिस्पेक्ट एज अ हीरो इज द मैन हु डिस्ट्रॉयड द काबा। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था ना ये, 17 साल का कमांडो आ गया था यहाँ, आ गया वापस, उसको बोरी में बंद करके he was trying to play mind games, वो उसकी बेटियों ने मरवा दिया उसे, थैंक गुडनेस। तो उसका कोई पॉइंट तो होना चाहिए कि पाकिस्तानी से बोले सिंध बेसिकली इज पार्ट ऑफ हिंद, और ये आएगा हमारे पास, आप फिक्र ना करें, क्योंकि हमारा रास्ता हिंगलाज माता को जाता है थ्रू लसबेला वसबेला, ये सारा हमारा है। आप जाइए अपने कहीं तुर्की उर्की बहन भाई ढूंढिए जो नॉर्थ में पड़े हुए हैं, वो काफी सारे। You have to be assertive without hatred. You have to fight this with logic and not with hate. तो प्रॉफिट को गालियां देने लग जाएं, ये सब इसलिए नहीं चलता। मुसलमान लड़े, काफी हैं इंडिया में मुसलमान जो मौलवियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनको कुछ गुंजाइश होनी चाहिए। हमने कोशिश की थी फतह के फतवे में, लेकिन जुलूस मेरे खिलाफ निकल गया। अरुण जी पूछ रहे हैं, अच्छा सर थोड़ा सा हम रैपिड फायर मोड में जाएंगे। ठीक है, सॉरी, I'll restrict my answers. Okay. Arun RD, people become atheists when they get disgusted of their faith born in. They are like people who left home on road without destination, dangerous because they can be either guided or misguided. This is an observation. I think we can agree with it. Yes, I think so. So, and they are free. They should be free to be atheists. Yes. Which is again a conflict within Islam. They say that if you leave, become an atheist, you have to be killed. Eklavya Singh, sir, we are here about so many pro-Khalistan and anti-India elements settled in Canada. Tariq sir, do you personally face any trouble from them? I do.
from young Khalistanis, and of course उनके जो साथी हैं, the नौजवान Pakistani born in Canada. These two elements are very hostile to Western civilization, but they control too many facets in the Canadian government. There is a Khalistani caucus, and as well there is a Muslim caucus within Canada's parliament that operate separately from others. आप अंदाजा लगाइए. Ravi Verma, sir, after the death of Dawood Ibrahim, can we expect positive impact on Bollywood? मर गया क्या? I didn't know that. मुझे भी नहीं पता कि मर गया. Ajay Sharma, Tariq sir, always fascinating listening to you. Please take care. These are crazy times for people like you who speak the truth. अरे sir, thank you so much. I'm very indebted to you. Okay. कम बात आती है ऐसे प्यार से, वरना आम तौर पे गालियां दे रहे होते. Okay. As Chetan Sharma, I am reading Vikram Sampath Savarkar, and I am amazed that there hasn't been any mention of ML Dhingra or India House London. Shyamji Verma, Indian flag, Madam Bikaji Kama, sir, request you to please enlighten us more. No, why are you reading? I'll tell you what to read. Yeah. You I'm read. not the expert in this area. So I will tell you which book to read if you want to really read about Savarkar. You read Dhananjay Keer's biography of Savarkar. That is the most authentic account. But Dhananjay Keer. His book on 1857 War of Independence. Yeah, that's his own book. I I'm know, talking but about you can see the greatness of the man from how he captured the whole thing. At that time, he was just 17. And that's the only book that has been in the history of the world. That's the only book that was banned before it was published. Are you serious? Yes. That's world history. Subramaniam. So despite knowing your forefathers were Hindus, what's so special about being a Muslim? Is your strategy to bring change from within? No, not necessarily. Everyone who affected my life, from my mother, my father, my comrades, my friends, they have all been Muslim. My entire upbringing has been a Muslim. And I don't see any reason why I should reject what has been the result of their input into me, whether they were military officers, whether they were professors at colleges. They were all Muslim. My father, my mother particularly, but I am who I am. I find it distasteful to reject one and embrace completely other. That looks unnecessary. One has to speak the truth. आपके national anthem में है, national motto है ना आपका. सत्यमेव जयते. हाँ, बस वो बोलते जाइए, खुद आपको freedom, liberty दिलवाता है. धर्म चेंज करने में क्या है, टेंशन रहती, खामखा एक अलग बहस में पड़ जाए कि किसका. दोनों चल रहे हैं. I say I am a Hindu Muslim. अब कर लो जो करना है. क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही मुर्तद हैं और क्या करें. और नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे हर चीज में लुत्फ आता है. एक बड़ी एज में जाके हमने हिंदुइज्म पढ़ा है. My wife, my children, my daughter, everyone, so many of my friends, they are all Muslim, but मैं उनसे कहता हूँ, your hatred of Hindus has to be thrown out of your system. You need to wash your insides and then you become enlightened. तुम जब तक हिंदुस्तानी नहीं बन सकते तब तक तुम एक इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम हो हिंदुस्तानी और अपने जो पुश्तें गुजरी पहले उनको हेट कर रहे हो. यानी there has to be seriously wrong with someone who hates his ancestors and loves his plunderers. उल्टी दुनिया है, यानी कहीं आपको नहीं मिलेगा ये. Correct. Dr. Chetan Tariq ji will always be known as a man who shocked Indian audiences and responsible for Hindu awakening due to his appearance on Indian TV channels. I second that. Arey sir, thank you so much. Bharti Yogesh Soman, repeat question. Do the Abrahamic faiths ever have the question of Sat Sad Vivek Buddhi? I mean, every human. आप क्या बात कर रहे हैं? सोचने की तो इजाजत है नहीं, तकलीद चलती है. आप क्या बात करें? अकल का इस्तेमाल जो है वो अलाउड नहीं है.
हाँ, it is considered sacrilegious, अगर मैं ये कहूँ। हम ये नहीं पूछ सकते एज अ मुसलमान कि ये अल्लाह कहाँ से आया। और ये बच्चे की पहली ख्वाहिश होती है, आप उसे कहे अल्लाह मियाँ ये किया, भगवान ने ये किया, जो भी है, वो कह के तो कौन कहाँ रहते हैं अल्लाह मियाँ। अरे इतनी पिटाई होगी आपकी तो आपके तो होश ठिकाने आ जाएगी। तेरा दोस्त कौन है, तू किससे लेके आया ये सवाल। उसका मुर्गा बना के कोने में बिठा दे, आइंदा जिंदगी में वो कभी सवाल नहीं करेगा। एंड इट इज एन इनोसेंट क्वेश्चन for any adult to say, but what is time, what is history, ये सब क्या है, ये बाकी दुनिया बाकी प्लैनेट्स पे क्यों नहीं कोई रहता, किसने हमको डाला यहाँ, उसके जवाब मिलना जरूरी नहीं, लेकिन सवाल करना बुनियादी हक है। ये सवाल तो हिंदू टाइप के लोग पूछते हैं साहब। अरे तो हम कहाँ से आए, हाले अरब से आए क्या? हमारे आप गुस्ताखी कर रहे हैं साहब, देखिए आप। नहीं मुसलमान सर, कैसा मुसलमान ने ये नहीं किया है सर। वो अनल हक कहते हुए गर्दन कट गई उसकी बगदाद में। दूसरा एक और है, आपको पता नहीं? हाँ, हैदराबाद में चलता है अनल मालिक, ये दूसरा सिंड्रोम है। अनल मालिक? यस सर, अनल हक पुराना हो गया, अनल मालिक नया है। वो कौन है अनल मालिक वाले, कौन है सर? सब हैदराबाद वाले मुसलमान, पाकिस्तान वाले मुसलमान, सब अनल मालिक के। नई नई चीजें बताऊंगा मैं आपको, आप देखते जाइए सर, लेकिन उस एक्सेंट में बताइए तब मजा आएगा, वरना वो भी ट्राई कर लूंगा थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम। हमारे यहाँ थे कराची में हैदराबादी काफी, लेकिन हमने उनको सबको पंजाबी के थ्रू उर्दू में वापस ले आए। अच्छा चलिए। उनके सबसे पहले दिल्ली वालों ने कहा ये कोई जबान है। मैं माजरों में ही रहता था ना, वो नाजमाबाद एक इलाका, वहाँ हैदराबाद और बिहार से आने वाले मुसलमान को बोलने की इजाजत नहीं होती थी पब्लिक में। बट क्या किया चुप कर जाता, सिर्फ घर में बोलते थे अपनी जबान, बाहर और होती थी। कोई बिहारी या हैदराबादी तो माय गुडनेस, इट वाज लाइक परमानेंट जोक। अरे सर, अनल मालिक वो है, आप समझ नहीं रहे। अच्छा, ये हैदराबाद वाला मैं हूँ, अच्छा कि मेरा है ये, मैं हूँ मालिक, आई एम द ओनर। यस सर। अच्छा, ये भी चल रहा है। हाँ, वो कहा था ये तुम्हारे बाप के 4 मीनार, इन्हीं ने पूछा था ना शायद। वो किसी ने अच्छा कहा था, बाप तो तय हो गए सबके वैसे, लेकिन यू कैन फर्दर एक्सप्लोर। रजाकारों की औलादे हैं। गिरीश बिलोर, तारिक जी, संजय जी, विल द डेमोक्रेटिक सिस्टम एवर कम टू चाइना? Yes or no? I doubt it very much. It will require a tremendous revolution. जो जुल्म चीनियों के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, आप सोच नहीं सकते। They have been turned into robots. आप चीन, जो हमारे दोस्त गए देखने, आपको हर एक मील पे एक कैमरा मिलता है पूरे चीन पे। हर जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी वो आपकी मूवमेंट देखती है। हर जगह आप बर्गर खाने जाएंगे तो वो रीड कर लेता है आपका पासपोर्ट नंबर, नेम, कहाँ से आए थे, कब गए थे, वो क्या कहते हैं उसको, जो स्क्वायर एक है ना, you just put it to the your phone and it reads everything. They know everything about everyone who lives over there and how they have to be controlled. और अब उनको मिल गए हैं पाकिस्तानी जो उनके जूते वूते साफ करने के लिए काम आएंगे, तो they can concentrate on the big thing, which is to attack India. Okay, sir. Next question is Siddharth Srivastava, sir. What will be the impact of Joe Biden Kamala victory to Baloch freedom movement? Biden will be soft to Pakistan. We don't know whether he will survive this or not. We don't know. वो इतनी झूठी औरत है, उसने सारी जिंदगी अपने आप को ब्लैक कहा, जबकि थी वो इंडियन, और वो रहती कनाडा में थी और यहाँ एक हिंदू टेंपल में जाया करती थी। लेकिन उसने अपनी यूथ में ये देखा कि इंडियन जो है सेक्सी नहीं समझता, समझा जाता अमेरिका में, तो शी बिकेम ब्लैक। शी इज नॉट ब्लैक, शी अप्रोप्रिएटेड दैट। ये तो इलेक्शन के वक्त जब उनको वोट्स चाहिए थे इधर उधर और अब चाहिए इंडियंस के,
तो उनको बेवकूफ बना के वो इडली विडली खा ली और बोल दिया कि मैं ये हूँ. She never in her statement before running for the president's nomination ever talked about India. Never. तो जिनको भरोसा है कि हा इडली खाने वाली प्रेसिडेंट आ गई है, what will she do with Pakistan? She will have to now understand what is Pakistan. पता भी नहीं होगा जिन्ना साहब कौन है. She knows nothing except power, and you can notice that on her face. She's going to be a very dangerous person if she becomes president of the United States. Okay, next question is, Tariq sir, what percentage of Indian Muslims according to you are Islamists? Well, very few are Islamists per se, यानी वो लोग जो इस्लाम को सियासत के लिए यूज करते हैं, जो डेफिनेशन है इस्लामिज्म की, अल इस्लामिया, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की डेफिनेशन है. लेकिन मुस्लिम नेशनलिज्म में मैं समझता हूं मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन मुस्लिम्स बिलीव इन दैट. वरना अलीगढ़ में जिना की फोटो नहीं होती. देयर इज ओनली वन टेस्ट. जिस दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिना की फोटो उतार के किक मार के निकाला, उस दिन वो होंगे हिंदुस्तानी. उस वक्त तक वो सारे पाकिस्तानी. सर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस इज अ क्विज क्वेश्चन. Aunties like Arfa Khanam Sherwani will also get 72 hoods or what? This has often been a question, but Islamic Sharia says that women have been made for men for their pleasure. Vice versa नहीं है. तो अगर उनको कोई खुशफहमी है कि वहाँ they will have a date or they will be able to go to parties कि India में तो हुआ नहीं, now we'll go जन्नत के अंदर there will be some club scene. Now aunties will suffer their fate and be one of those who will cater to good men like Sanjay. I've just been informed that 20 questions more, so I think we should answer them in a line each. Okay, बार वो कह रही है बहुत बकवास कर रहा है बुड्ढा. वो आपके लिए, आपकी तबीयत को देखते हुए कह रहे हैं कि साहब आपको ज्यादा टाइम लगेगा, वरना हमें कोई तकलीफ नहीं, मुझे कुछ नहीं. यहाँ बर्फ पड़ रही है. इट इज ब्यूटीफुल आउटसाइड. चांस होता तो मैं दिखा देता आपको क्या घुमा के कि हाउ ब्यूटीफुल इज विंटर इन कनाडा. Arvind, here my view is that intellectual progress of Muslim women and their greater representation, participation in public life will help reform. We need reforms to educate them and make them. You're 100%. You are 100% right, sir. आप पाकिस्तान में देख लीजिए, नवाज शरीफ की जो साहिबजादी हैं मरियम नवाज, या बेनजीर की जो बेटी हैं आसिफा, and there are number of active women. आप इस बच्ची को देख लीजिए जिसको कनाडा में जिसको मार दिया गया. You'll be surprised how much the women's movement in Pakistan has gained. औरत एक ऑर्गेनाइजेशन है. बाय द वे, औरत का भी आपको तो पता ही होगा मतलब क्या है. आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ आजकल. मैं उर्दू तो काफी आपको पता चलेगा, इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ मैं अरबी भी पढ़ना शुरू कर दूं. शायद कर दें सर, कर दें. So the observation is correct. अफगानिस्तान में भी आप देखिए आप. लेकिन अगर आपको मुसलमान औरतें एजुकेटेड नजर आ रही हैं, असर्टिव नजर आ रही हैं, तो वॉच आउट फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड सिग्नल, which is Western educated born Muslim women who genuinely believe in their second class status, where it says, Quran says, take 1, take 2, take 3, take 4, and what your right hand possesses. The women who believe in that verse cannot bring progress. They are conditioning Muslim women to be concubines of the men who invoke the Sharia to enslave women. Right. ये जब तक बात नहीं होगी, unabashed clear thinking, ये आपके जो इंडिया में आंटियों की बात हुई, ये क्लियर बात नहीं करती हैं.
ये कई दफा बंद कमरे में बात कर लेती, जैसी महफिल लगती वहां फिर और कोई बात हो जाती है। Kedar Kelkar, don't you think unstable Pakistan is much more of a headache to India, like Syria or Yemen? If people march toward India, it will be much more dangerous to us. अरे फेंस लगा हुआ है यार इतना तगड़ा। देखें, you've been sold that idea for the last 1000 years. ये रुक सकता था सब, लेकिन ये महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनको फिर छुट्टी मिल गई। अब्दाली आके लाहौर शहर जला के चले गए, और लाहौर भी हिंदुओं का शहर था, केश भी, कसूर भी हिंदुओं का शहर है। वो सब छोड़ा है आप लोग इस चक्कर में कि ट्रबल ना हो जाए, और छोड़ने में गफार खान को छोड़ा है। यू अब इंडिया अबैंडन्ड इट्स मोस्ट लॉयल मुस्लिम्स, एंड आप कह रहे हैं प्रॉब्लम हो गया। लाहौर को छोड़ कैसे जोड़ सकते हैं आप लाहौर को? एक हिंदू नहीं रहता लाहौर में। तो सर, let Pakistan break into its natural pieces. भूटान मुल्क हो सकता है तो बलूचिस्तान भी हो सकता है। ये बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा, हाँ, ये निकलना पड़ेगा इसे। We have to liberate Balochistan the way we liberated Bangladesh, and we have to make Sindh into part of India. ये तो हमारे नेशनल एंथम है भाई, उधार तो पहले खत्म तो करो, सेटल तो करो। इसमें हमें गिल्ट नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल ले लेते। शायन कुरैशी सर, idol worship allowed by our, I think, creator. Is idol worship allowed by a creator, and what are your thoughts on drinking alcohol and Islam's position on this? Idol worship is fully allowed because we worship an idol in Mecca. We worship a stone and we kiss it, and we go round and around in counter clockwise position, and then we expect to move forward. दुनिया की वाहिद मूवमेंट है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। खुदा के वास्ते समझें कि ये क्लॉकवाइज होता था सब कुछ, और उसको इस्लामाइज करने के लिए उन्होंने कहा उल्टा कर दो। एंड दिस हैपेंड, इफ यू कैन फाइंड आउट, यू लेट मी नो ये कब हुआ। तमाम प्रॉफिट के दुश्मन जो हैं उन्होंने उमैय्यद डायनेस्टी बना दी, और हम उनके वो पड़ गए सामने सिजदे में। अगर आइडल वर्शिप खराब है तो वो तीन शैतान कहां से हैं जिस पर पत्थर मारते हैं आप? एक पे मारते हैं, दूसरे पे मारते हैं, तीसरे पे मारते हैं, वो कौन है? अगर तो आइडल नहीं है तो फिर हर जगह शैतान है। आप पे पत्थर लेके हवा में मारते रहे, किसी को लग जाए, बोले मैं तो शैतान को मार रहा था, तू कहां से आ गया बीच में? बट आई हैव डन हज ट्वाइस। मुझे कोई पट्टी ना पड़ाए कि हम आइडल वर्शिप नहीं करते, क्योंकि मैं आइडल वर्शिप कर करके मेरे तले जो हैं वो छिल गए थे, और उस जमाने में इतना मॉडर्न हज नहीं होता जितना आज है। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। Why doesn't Yogesh Soman, why doesn't entire Muslim population accept the help provided by Sanatanis to the grandson of the Prophet traveling all the way from Deccan Plateau to Karbala? The Shias talk about this history. They do, but Shias don't say openly that सिवाय हिंदुस्तान के there was no place on earth where the family of the prophet could take refuge. और फिर उन्हीं शियाओं ने लेके पाकिस्तान मूवमेंट चलाई। उससे पहले उन्होंने अब्दाली के साथ, आसफुद्दौला ने अब्दाली के साथ ज्वाइंट फ्रंट बना के और पानीपत की लड़ाई लड़ी। तो गुनाह जो हैं वो पूरे हो जाएंगे तो फिर सब सेटल हो जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं और बिलीव करते हैं सच और झूठ में, तो ये किसने कहा था कि जो आपको घर खोल दे उसको आप गालियां दें? जो आपको पानी पीने को दे रहा है मुहर्रम के दिन, उसका मजाक उड़ाएं आप? ये हिंदू बेवकूफ है यार, यहाँ तो कोई भी घुस जाता है, पकड़ लो इसको। फिर भी इंडिया के शिया जरा समझदार हैं, लेकिन they haven't come out and spoken that this is where आले मोहम्मद got their relief। जब अरब मार रहे थे प्रॉफिट की फैमिली को, तो ये सिंधियों ने और हिंदुस्तानियों ने उनको पनाह दी। तो ओपनली कहना चाहिए पाकिस्तान खत्म। हाँ, इकराम साहब कुछ कह रहे हैं। इकराम साहब कह रहे हैं एक्स मुस्लिम फ्रॉम हैदराबाद हियर। तारिक खुतै, आई नो माय हिंदू एंसेस्टर्स नेम फ्रॉम 1022 AD।
ओहो, Who are yours? आप भैया बताइए कब से जानते इतने हैं? मेरे नाम मेरे नहीं है। मैं ये इस ट्राइबलिज्म में कि मैं अपने दादा के फादर तक का नाम जानता हूँ, और शायद ही कोई लोग हों। फैमिली ट्री है हमारी जिसमें सिंह हैं सारे, लेकिन वो पाकिस्तान में पड़ी हुई है, तो उनसे मैं पूछ के बताऊँ। मेरा इसमें मुझे कोई वो एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और ना मुझे अपने एंसेस्ट्री तलाश करनी, जो रियलिटी सामने है उस पे बात करने का ज्यादा शौक है। शिवानी जी पूछ रही हैं, would it be great if conversion thirsty looters of Christian and Islam communities will fight amongst each other and Hindu will get relief finally? No, they didn't. Hindus got no relief when the Crusaders fought with the caliphates of Baghdad. In fact, the Khalifa of Baghdad did not know that the Crusaders had attacked. तो उसको जाने दें। और वैसे भी जेरूसलम की आज़ादी में हिंदुस्तानी फौज के मुसलमान और हिंदू साथ थे जब मार्च के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इतना नहीं करना चाहिए हमें कि कौन जीता कौन हारा। वी शुड प्रेशराइज टू फेस द ट्रूथ, और कोई इलाज नहीं इसका। Okay. Sir, why Indian Muslims have stones readily available? क्या आप चाहते हैं कि उनके पास बंदूकें अवेलेबल हो? भैया ये स्टीरियोटाइपिंग इतनी नहीं है। अब हर हिंदुस्तानी मुसलमान के घर स्टोन तो नहीं होता है यार। हम बहुत लोगों को जानते हैं, ठीक है लोग हैं, बट इतनी ज्यादा एग्जैजरेशन मत किया करें। अगला सवाल है, पूछ रहे सर, हैविंग स्टेड इन कनाडा, व्हाट इज योर टेक ऑन खालिस्तानी थ्रेट टू इंडिया? मोहित हांडा। It is there. It is in trying to break decent relationships between Canada, which is a middle level power, which has a tradition of social democracy, which has an ethic and a principle that is incredible, जिसे हम प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक कहते हैं, वो यहाँ था। उसको इंडिया से ये रोकना चाहते हैं हर सूरत में कि ना हिंदुस्तान कनाडा को, ना कनाडा हिंदुस्तान से कुछ सीख या सिखा सके। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ बैठे हुए पिछले 100-150 साल से कुछ सिख जो गए थे कैलिफोर्निया, वो थे उस मूवमेंट में, गदर मूवमेंट के सिपाहियों में से थे, जो सिंगापुर भी गए, इंडिया भी आके लड़े अंग्रेज के खिलाफ। लेकिन कुछ जो सेटल हुए ब्रिटिश कोलंबिया में, यानी कनाडा के सबसे वेस्टर्न प्रोविंस में, उनके अंदर पाकिस्तान आईएसआई ने बहुत काम किया। यानी कि वैंकूवर साइड पे पाकिस्तानी रहते नहीं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी का काउंसुलेट है। तो they have done an incredible job in infiltrating, in trying to create anti-Indianness. कोई वजह भी नहीं है उसकी। एंड में आपको आईएसआई पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक सिख का एंटी इंडिया होने का व्हाट्स द पॉइंट? आई कैनॉट फिगर आउट। और जो 84 की बात कहते हैं, मैं उसे कहता हूँ 47 से तुम्हें बड़ा प्यार है और 84 पे नाराज हो रहे। जहाँ 5,000 मर गए वो भूल नहीं पा रहे, और जहाँ 1 मिलियन को मार दिया उससे दोस्ती किए बैठे में। So there is a difference in their ethics, which I disagree with. Okay, Siddhant, India and its Hindu majority character both will remain. Pakistan will never reconcile with Hindus. Do you see any solution to this conflict apart from disintegration of Pakistan? Happy New Year. आपको भी नया साल मुबारक हो। No, I do not see any solution other than the breaking apart of Pakistan's different states, especially Balochistan, because Balochistan was an independent country which had an embassy in Pakistan and which was invaded on March 28, 1948. Until then, it became an independent country on August 11, 1947, 3-4 days before India and Pakistan got its independence, because it was ruled by Britain, not by Lord Wellesley and all these guys from Delhi. तो वो अलग है, उस पर कब्जा किया फौजी। आप उसकी आज़ादी की बात करें,
लोग तंग आए हुए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Right. Next one. India, Hindu majority character both. No, this is the question that is हाँ, being हाँ। asked. पूनम अभी तारक फतेह जी, पैदा होने से क्या होता है? हमारे चाचा जी कहते थे, गधा अरब में पैदा होने से घोड़ा तो नहीं बन जाता। आपने तो सुना होगा। हाँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा ट्राइबल और रेशियल कॉन्सेप्ट है, जिसको अप्लाई किया जाता है कालों के साथ इन द वेस्ट, दलितों के साथ यही कहा जाता है। सो इसमें कोई वो नहीं है। आई हैव सीन पीपल हु हैव डन रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट्स। लोग उन्हें गधा ही कहते थे, वो तो आलीशान घोड़े निकले, और जिनके यहाँ आलीशान घोड़े पैदा हुए वो निकम्मे ऐसे निकले कि आप देख लीजिए, आपको गांधी जूनियर कहीं नहीं मिलेंगे, उनको पता ही नहीं है कहाँ आजकल। आशुतोष जी कह रहे हैं, तारिक साहब ने फर्स्ट इंडिया टूर का ताहिर गोरा के चैनल पर बहुत अच्छा एनालिसिस किया था इंडिया का, उसके बाद क्यों नहीं करते? मैं तो सुबह शाम करता ही हूँ, मुझ पे तो इल्जाम है कि मुझे रॉ करवा रही है जी। चले मैं डिफेंस में यूज करूंगा कि साहब मुझ पे इल्जाम है कि मैं बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि आप कर ही नहीं रहे, आपने बात ही नहीं की उसके बाद से। नहीं, और बात ही नहीं करता भैया मैं। ये पीछे आप देख रहे हैं ना, इसमें 90% किताबें इस्लाम और इंडिया में, मैं बता रहा हूँ सच में। आशीष जी पूछ रहे हैं, why Hindus are dealt into fragments and Muslim in single block? क्योंकि Hindus live primarily in a democracy, and that democracy exists in India, represented by maybe 2,000 to 3,000 political parties. So generally you are divided amongst your political likings. मुसलमानों के मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होती है, ये क्यों नहीं समझ में आता आपको? एक सुल्तान होता है या खलीफा होता है, चाबुक मारता है, 500 आदमी मार देता है, 200 बीवियां लेके कौन थे, वजाहत अली खान, वो कलकत्ता चले जाते हैं। अवध का नवाब होता है, कोई हैदराबाद का नवाब होता है। सो देयर थिंकिंग इज क्या कहेंगे, व्हाट वुड बी द वर्ड, के बस एक ही तरफ घोड़े की तरह है कि वो आसपास का नहीं देख रहे। आप लोग बदनसीब हैं कि आप जमहूरियत में पैदा हुए हैं, तो आपके पास फ्रीडम है, उसमें आपको डिसयूनिटी नजर आती है। ये अल्लाह करे ऐसी डिसयूनिटी सब में आए ताकि सोचने के तो काबिल हो कि इस दफा वोट किसको देना है। ये नहीं कि अब्बा हजूर ने कह दिया कि भैया इसको वोट डाल दियो, पूरा गांव जा रहा है एक ही आदमी को वोट डाल दे क्योंकि वो फलाने ने कहा था कि इसका। ये तो खत्म करें ना। तो कोई यूनाइटेड नहीं और कोई डिवाइडेड नहीं है। इट इज अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कि जब सोसाइटी आगे बढ़ती है उसका डिवीजन इज नॉट बैड, इट इज डिबेटिंग। अब स्किन कलर एंड हेरिटेज पे डिवीजन इज अ डिजास्टर। कि वो फेयर एंड लवली खत्म करें आप, और ये कास्ट सिस्टम भी जाने दीजिए। आपके अच्छे दिन तो अभी आने हैं, लेकिन ये कह देना कि वो कालिया है और फलाना है, इस टाइप का बहुत मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ। आई होप इट्स नॉट देयर इन इंडिया। मैवरिक मिश्रा, दोनों को मेरा चरण स्पर्श। तारिक सर, योर नेक्स्ट बुक ऑन कुरान विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कब आएगी? एंड पाकिस्तान के फकीर पीएम का तख्ता पलट कब होगा? उन्होंने पाकिस्तान का पाकिस्तान नहीं कहा था। वो देखिए, किताब मेरे पास बैठी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे साथ को राइटर जो हो वो अरबिक मदर टंग हो उसकी। क्योंकि पहली चीज मुसलमान ये कहता है आपको तो अरबी नहीं आती, आपने कैसे किताब लिख दी? तो काम मैं करूंगा, लेकिन कुछ साथ मेरे आने के लिए तैयार नहीं है जो अरब मुझे इक्वल अपना समझ सके। तो वो एक किताब मैं हिंदुओं पे लिख रहा हूँ, वो पहले आ जाएगी शायद, द हिंदू इज नॉट माई एनिमी, जैसे यहूदियों पे लिखी थी जू इज नॉट माई एनिमी। लेकिन ये दिस वाज अ रेवलेशन टू मी दैट नोबडी wanted to be associated with a book on the chronology of the Quran from the Arab community. It was quite astounding. ये तो ब्लास्फेमी है, आप ब्लास्फेमी करेंगे तो ना, मैं कैसे ब्लास्फेमी कर रहा हूँ सर?
ये तो कुरान बनाए, ये जैसे कंपाइल हुआ है, दिस वाज फॉर 30 12 to 20 years after the prophet had died, और 300 कुरान तो हजरत उस्मान ने जलाए, ये सब खत्म करो। एक कंट्री में 99% इलिटरेसी हो, वो स्याही नहीं बना सकते, वो कागज नहीं बना सकते। हजरत उस्मान के तो वो अब बैठे हैं ना आपके कौन बैठे हैं सर? डायनेस्ट, उनसे बात कर लीजिए ना, हमारे जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब, क्यों मेरा झगड़ा करवाएंगे उनसे? आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मैं सही नहीं चल रहा बिल्कुल। बट इज ही अ डिसेंडेंट ऑफ हजरत उस्मान रियली? मैंने आपको कितनी बार बताया, 34वीं पुश्त है वो। ओ माय गॉड, अरे ये तो गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ वो हजरत उमर के हैं, उमर हाँ फारूक, हाँ, अच्छा अच्छा, फारूक ही हैं वो। फारूकी हैं, उमर फारूकी हैं, अच्छा मेरी गलती, फारूकी हैं, ओके हाँ चलिए। फारूक ही हैं साहब, वो उमर फारूक साहब, हजरत उमर के हजरत हैं तो उस्मान, किसी हजरत के ही, रशीदुल नहीं खलीफा के। उमर फारूक का तो कोई रोल रहा है ना इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर। जो भी जैसे भी आप कहें, ही वाज द डे द प्रॉफिट डाइड, ही वाज फ्रंट लाइन इन डिफाइनिंग के जिस पे अबू बकर ने कहा कि द प्रॉफिट हैज डाइड, ओनली गॉड लिव्स फॉर एवर, वो जो झगड़ा हुआ था फौरन बाद के, द प्रॉफिट इज नॉट डेड। तो Usman was more of a trader type of a person. He was not someone with a profound knowledge. And बेचारे उनके साथ उनका end भी, he got murdered. But he is the one who ordered this. And because the Arabs had no concept of what is a book, they took the big to the smallest. That's how it is. पहला कुरान का वर्ड जो है वो इकरा है, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड who created you. आप ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। है ना सर, 93rd में है। अरे 93rd तक पहुंचता कौन है सर? इतने बीच में कुरान खानियां होती हैं, आप देखिएगा लोग जल्दी जल्दी चैप्टर आगे करते हैं। पहला वर्ड तो पहला वर्ड होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ने कहा ये तो पहला पहला आ वर्ड गया है। ना सर, अब अल फातिहा आ गया, उसमें कह दिया आपको कि साहब की जूस और क्रिश्चियंस जो है वो बहुत बदमाश होते हैं, और तो क्या चाहिए आपको? तो सर आप फिर लड़ते रहिए, एक दिन आएगा जिस दिन कोई चैलेंज करेगा कि हाउ इज दिस बीइंग रेड 72 टाइम्स अ डे इन एवरी मॉस्क इन नॉर्थ अमेरिका। अब तो होश नहीं आया है ना, अब तो वो खुश होके बैठे हुए ट्रंप चला गया, अब लाने दें और कुछ 1-2 मिलियन ले आए ज्यादा सोमालिया पाकिस्तान से। अगला सवाल ले लेते हैं। अजाने सर लाउड स्पीकर पे डाल दिए हैं यहाँ कनाडा में ना अभी तक। हाँ, और वो पंजाबी में कहते हैं होर चुपो गन्ने। Winview. Tariq Saab, what is your take on Karima Baloch's campaign about Canada's government legitimizing Pakistani army officers to divert their blood-soaked money into its system? Isn't it genuine concern? Oh, absolutely. Absolutely, you are right. And Karima, I salute her for recognizing this. And for her to come in public and say in English in front of an audience that this is a crisis you are creating. And this is happening. We have a Pakistan Armed Forces Club in Toronto where I live, जिसके अंदर सर मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी अपनी पार्टीज होती हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं, उनके बाहर जलसे जुलूस होते हैं, एंड दे डिटरमिन देयर लॉयल्टी एज फाइनली टू द आईएसआई। और कनाडा के बैठे हुए क्या कह सकते हैं, कनाडा की जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनकी स्पोक्सपर्सन पाकिस्तानी थी, तो अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा यहाँ। What is more dangerous in Pakistan? Mullah and Madrasa education system or Pakistan Army? पाकिस्तान आर्मी सर। Okay. मुल्ला के साथ आप बात कर सकते हैं ना। Umang Kukreja, our government should work on bringing Sindh back for the sake of Sindh people and for fulfilling the last wish of our hero Godse, who did self-sacrifice. Pakistan just needs one stumble. I think it's an observation. We take it as an observation and move forward. Yeah. Eklavya Singh, sir, or someone told me that one of the unwritten qualifying criteria for being a panelist on the Jaipur Literature Festival is having an elite English-speaking Pakistani friend. Is it true? Yeah. I can assure you one thing. I do not qualify for any of these festivals
even the ones held in Toronto, I'm quite actively it is ensured that I am not seen anywhere around it. क्योंकि आपके यहाँ एक वाइसरॉय हैं, अंग्रेज छोड़ गए, अभी तक चल रहा है वो। हाँ, वो तो ठीक है सर, वो आपको खतरा भी तो है ना, वो रेख्ता की तरह कहीं हो जाए तो। Canada will pay the price for harboring. Yes, Canada will pay the price for harboring these retired Pak armies, whom there will be demand for Khalistan inside Canada. Let Toronto be the capital. Why Toronto? नहीं 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 नहीं, देखें ये जरा आप एक बात को लेके एग्जैजरेट कर दिया आपने। पाकिस्तान आर्मी के लोग पाकिस्तानियों को मारेंगे और कैनेडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके सामने एक दो पाकिस्तानी मर जाए, क्या फर्क पड़ता? जी, what is Pakistan? Pakistan is a private elite Punjabi fiefdom of the Punjabi army by the Punjabi army for the Punjabi army. Please comment, Tariq ji. Yes, you are right. It is so. It is other countries have an army. This army has a country. Correct. Next one. मंजुला, पहले थे हम रावल योगी, फिर हम बन गए दर्जी, होते होते सैयद, हो गए आगे अम्मी की मर्जी। ये कोई छोटी मोटी शेरो शायरी लग रही सब आपकी। हाँ, पता समझ में नहीं आई, उसमें मुझे जरा थोड़ी सी रेसिज्म नजर आती है, उससे बचना चाहिए, हेट्रेड से बचना चाहिए, इट कैन डिस्ट्रॉय यू। So that is it, sir. We have finished the questions within 1 hour, so which is quite an achievement. Oh, one more question. अरे चलिए, Request you to translate Fatwa Alamgiri and publish the same along with a logical rebuttal. अरे भाई, फतवा आलमगीरी तो हम लगे हुए हैं उसमें, तो उसपे भी आपने वो जो फतवे किताब लिखी है अपने, अरुण शूरी ने भी काफी डिटेल काम किया। यस, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, खुदा भी मिल जाता है सर। पसमानदा मूवमेंट नॉट मूविंग cause everyone says they are AMM. AMM is Ashrafiya Mullah Maulana, another term coined by me. अच्छा, अमीन कह देते, उसका बना के भेजता हूँ मैं आपको। फर्स्ट सिलेबस इन मदरसा इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर वही जो तालिबान का है मदरसा, वही है, और क्या होगा? देवबंदी है ना ये सारे, तालिबान और ये जितने भी जिहादी हैं। तो मदरसे तो दोनों ही को चलाते हैं ना, हमारे बरेलवी भाई, कोई पीछे थोड़ी है। बरेलवी भाई शराफत में रहते थे, वो गुंडागर्दी के उसमें आ गए कि हम भी हैं। अरे साहब क्या बात करते हैं, मैंने तो अभी हिस्ट्री ऑफ सारे राइट्स निकाली है, और जितने भी दंगे हुए हैं सब बरेलवियों ने किए। कहाँ पे? कि पंजाब में नहीं किए होंगे सर? हिंदुस्तान में। अच्छा, प्री इंडिपेंडेंस, वो मेरी किताब में डिटेल है सर। अरे सर कब पहुंचेगी वो यहाँ, बस देखते हैं, चले। ओके, किंडल पे तो है अवेलेबल आपके कनाडा में। नहीं, ये किंडल विंडल नहीं मैं पढ़ता सर, जब तक कागज नहीं पलटा जाए दैट इज नॉट अ बुक। मैं बता रहा हूँ, उसकी रिटेंशन ही नहीं रहती। वो आप पेज इलेक्ट्रॉनिक मूव करते हैं, इट डिसअपीयर्स, दैट होल व्हाट यू रेड इज गॉन। बुक है, कागज। So, sir, with that we come to the end of this wonderful conversation. Thank you so much for having me. चले, नया साल मुबारक हो सर आपको। आपको भी साहब नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और रॉ वालों से कह दीजिएगा। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार 2020 का जो नया साल था वो हमने आपके साथ शुरू किया था। ओह, दैट इज सो नाइस। चले, दिल्ली में आके हमने आपकी रिकॉर्डिंग की थी। हाँ, और उसके बाद से साहब जयपुर डायलॉग इतना फला फूला कि हमारे 15.4 मिलियन व्यूज हो गए 2020 में। अब इस बार हम फिर आपसे ही शुरू कर रहे हैं, अब देखते हैं। चले देखें, आपके मुंह में घी शक्कर जिसे कहते हैं ना, वो कभी आइए कनाडा भी, देख के जाइए, बहुत ही अच्छी जगह। कनाडा में जयपुर डायलॉग्स फेस्टिवल कर ले। हाँ, अरे वाह वाह, ओ माय गॉड, आपका वाइसरॉय तो मर जाएगा फिर। जाने दे सर। ओके, चलते। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
Namaskar. God bless Namaskar. you. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.